بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ، ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی، فی یونٹ بجلی کی قیمت میں ₹1.63 اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی جنوری 2026 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں مہنگی کی گئی۔ اضافہ بجلی صارفین سے مارچ کے بلوں میں وصول ہوگا۔ بجلی کے صارفین پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ سہ ماہی کے بعد ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بھی بجلی مہنگی کر دی گئی۔ ملک بھر کے لیے فی یونٹ بجلی ₹1.63 بڑھا دی گئی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی حکومت نے پھر مہنگی کر دی ہے جی، تو پہلے غریب آدمی جو ہے اس کا تو جینا مشکل ہے، وہ گھر کے اخراجات چلائے یا بل دے، تو یہ حکومت کو چاہیے کہ ان پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا۔ بجلی اب کیا کرے، جہاں دوائیاں لے لیں یا گھر کے بل جب بچوں کو پال لیں، ایک کام ہو سکتا ہے۔ بجلی کا اضافہ ہو رہا ہے بہت، تو اسی انہیں یہ چاہنا کہ گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیاں دے وچ کچھ مطلب بل گھٹنے چاہیے تو انہوں نے پھر ہی بڑھائی جاندے نے، تو قیمتاں کم از کم ہونی چاہیے کہ جڑا غریب بندہ ہی مطلب دے سکے، نہیں تو غریب دے واسطے تو گیم ہی نہیں رہی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی جنوری 2026 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں مہنگی کی گئی۔ اضافہ بجلی صارفین سے مارچ کے بلوں میں وصول ہوگا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ لائف لائن صارفین الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر اطلاق نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ نیپرا نے جنوری کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پولیو نے لاہوریوں کا پیچھا نہ چھوڑا، سیوریج میں پولیو وائرس کی پھر تصدیق ہو گئی۔ آؤٹ فال روڈ سے لیے نمونے میں وائرس پایا گیا۔ سیوریج نمونے تجزیے کے لیے قومی ادارہ صحت کو بھجوائے گئے۔ بار بار مہم چلانے کے باوجود 2 سال سے پولیو وائرس ماحول میں موجود۔ محکمہ صحت کے تمام دعوے دھرے رہ گئے۔ لاہور کے سیوریج میں پولیو وائرس کی پھر تصدیق ہو گئی۔ آؤٹ فال روڈ ڈسپوزل اسٹیشن سے لیے گئے سیوریج نمونے میں پولیو وائرس پایا گیا۔ فروری میں شہر کے سیوریج نمونے تجزیے کے لیے قومی ادارہ صحت کو بھجوائے گئے تھے، جن میں سے آؤٹ فال ڈسپوزل اسٹیشن کے نمونے میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی۔ ضلعی شعبہ صحت نے گزشتہ ماہ لاہور کو پولیو فری بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جو 1 ماہ بعد ہی غلط ثابت ہوا۔ شہر میں بار بار مہم چلانے کے باوجود 2 سال سے پولیو وائرس ماحول میں موجود ہے، جو محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ایران جنگ اور خلیجی ممالک کی صورتحال، دبئی، شارجہ، ابوظہبی، کویت، بحرین اور دیگر ایئرپورٹس بند، فلائٹ آپریشن متاثر۔ لاہور سے 35 پروازیں منسوخ، آج مجموعی طور پر 155 پروازیں معطل ہوئیں۔ قطر ایئر ویز کا آپریشن 6 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان۔ لاہور اور کراچی میں امریکی سفارتی عملے کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت جاری۔ ایران امریکہ جنگ کے باعث خلیجی ممالک کے لیے فضائی آپریشن 5ویں روز بھی بحال نہ ہو سکا۔ لاہور سمیت ملک کے دیگر ایئرپورٹ سے آج 155 پروازیں منسوخ ہوئی۔ دبئی، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، جدہ، قطر جانے والی پروازیں منسوخ کی گئیں۔ کویت، ایران، عراق جانے والی پروازیں بھی منسوخ ہوئیں۔ پروازوں کی بحالی کے لیے ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کی ایئرپورٹ اتھارٹی سے مشاورتی ہوئی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھ کر لاہے عمل ترتیب دیا جائے گا۔ پروازوں کی منسوخی سے ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کو اربوں کا نقصان ہوا۔ سعودی عرب کے دمام اور ریاض ایئرپورٹ بھی کئی گھنٹے بند رہے۔ دمام اور ریاض جانے والی پروازیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب غیر ہنگامی امریکی سفارتی عملے اور اہل خانہ کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ امریکی سفارت خانہ کے مطابق حالیہ کشیدگی کے باعث کمرشل پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث غیر ضروری عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ پنجاب کے قرضے 1 سال میں بڑھ گئے۔ قرض بڑھ کر 1.75 کھرب روپے ہو گیا۔ جون 2024 میں صوبائی قرض 1.67 کھرب تھا۔ 1 سال میں 80 ارب روپے اضافہ ہوا۔ محکمہ خزانہ نے رپورٹ تیار کر لی، قرضوں میں اضافے کی بڑی وجہ روپے کی قدر میں کمی قرار۔ پنجاب کے قرضے 1 سال میں بڑھ گئے۔ قرض بڑھ کر 1.75 کھرب روپے ہو گیا۔ جون 2024 میں صوبائی قرض 1.67 کھرب تھا۔ 1 سال میں 80 ارب روپے اضافہ ہوا۔ محکمہ خزانہ نے 2 سالہ رپورٹ تیار کر لی۔ قرضوں میں اضافے کی بڑی وجہ روپے کی قدر میں کمی قرار دی۔ دستاویزات کے مطابق جون 2024 میں پنجاب کا مجموعی قرض 1.67 کھرب روپے تھا، جو جون 2025 تک بڑھ کر 1.75 کھرب روپے تک پہنچ گیا۔ یوں 1 سال کے دوران صوبائی قرض میں 80 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2018 سے 2025 کے عرصے میں پنجاب کے قرضوں میں مجموعی طور پر تقریباً 1.1 کھرب روپے کا اضافہ ہوا، جس کی بڑی وجہ روپے کی قدر میں کمی قرار دی گئی۔ دستاویزات کے مطابق قرضوں میں اضافے کا 86% حصہ کرنسی ویلیویشن کے باعث سامنے آیا۔ مالی سال 2025 کے دوران پنجاب کی خالص قرض گیری 12 ارب روپے رہی۔ نئے بلدیاتی ایکٹ 2025 پر عمل درآمد کا باقاعدہ آغاز۔ بلدیاتی اداروں کی ڈی مارکیشن کا مرحلہ مکمل۔ لاہور کی 9 ٹاؤن کارپوریشنز کے نام بھی نوٹیفائی کر دیے گئے۔
डिमार्केशन के नतीजे में यूनियन कौंसल्स की मुमकिना तादाद का तयन कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में 433 यूनियन कौंसल्स बनेगी। यूनियन कौंसल की आबादी 21 से 29,000 रखी गई है। लाहौर में 433 यूनियन कौंसल्स बनेगी। 9 टाउन कॉर्पोरेशंस के नए नाम भी नोटिफाई हो गए। नए बल्दियाती एक्ट 2025 पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज हो गया। टाउन कॉर्पोरेशंस के डिमार्केशन के नतीजे में यूनियन कौंसल्स की तादाद का भी तयन कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनियन कौंसिल की आबादी 21,000 से 29,000 तक की रखी गई। टाउन कॉर्पोरेशन मॉडल टाउन की आबादी 22,97,000 नफूस पर मुश्तमिल होगी। टाउन कॉर्पोरेशन मॉडल टाउन में 21 मौजाजात 77 यूनियन कौंसिल्स बनेगी। टाउन कॉर्पोरेशन शालीमार टाउन की आबादी 21,48,724 नफूस पर मुश्तमिल होगी। टाउन कॉर्पोरेशन शालीमार टाउन में 22 मौजाजात 72 यूनियन कौंसिल्स बनेगी। टाउन कॉर्पोरेशन लाहौर सिटी 20,66,740 नफूस पर मुश्तमिल होगी। टाउन कॉर्पोरेशन लाहौर सिटी में 26 मौजाजात शामिल 69 यूनियन कौंसिल्स बनेगी। टाउन कॉर्पोरेशन रावी टाउन की आबादी 13,96,318 अफराद पर मुश्तमिल होगी। टाउन कॉर्पोरेशन रावी टाउन में 23 मौजाजात होंगे। 52 यूनियन कौंसिल्स बनेगी। टाउन कॉर्पोरेशन ईस्टर टाउन की आबादी 10,01,856 अफराद पर मुश्तमिल होगी। टाउन कॉर्पोरेशन ईस्टर टाउन 42 मौजाजात पर मुश्तमिल 40 यूनियन कौंसिल्स बनेगी। टाउन कॉर्पोरेशन अल्लामा इकबाल टाउन की आबादी 9,38,250 नफूस पर मुश्तमिल होगी। टाउन कॉर्पोरेशन अल्लामा इकबाल टाउन 19 मौजाजात 37 यूनियन कौंसिल्स पर मुश्तमिल होगी। मुख्तलिफ महकमों को महकमा खजाना से फंड्स मिल गए। वज़ीर आला डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 1 अरब जारी। गुर्दा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 455 मिलियन रुपए दिए गए। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के लिए 401 मिलियन मुंतकिल। बजट ऑनलाइन कर दिया गया। वज़ीर आला डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला के गुर्दा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 455 मिलियन रुपए का इजरा किया गया। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के लिए 401 मिलियन रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। 21 अजला में वासा एजेंसीज के क्याम के लिए 7 अरब से ज्यादा मालियत की दरकार मशीनरी की खरीदारी के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए समरी अरसाल कर दी। समरी में कहा गया कि मशीनरी की खरीदारी के लिए 7.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दरकार होगी। फील्ड ऑपरेशन के लिए 350 अक़साम की मशीनरी और आलात खरीदे जाएंगे। 19 अजला में वासा और बकियाती अजला में सब वासा कायम किए गए हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहानी अमले की मुआवजों की अदायगी के लिए 8 करोड़ रुपए की अदायगियों के लिए फंड्स फराहम कर दिए गए। लाहौर बोर्ड ने फंड्स की मंजूरी के लिए दरख्वास्त में लाहौर बोर्ड को भिजवा दी है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि फंड्स मंजूर होते ही 5 मार्च से निगरान अमले को अदायगियां शुरू कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब के 38,000 स्कूल फंड से महरूम है। महकमा खजाना ने 3 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद के नॉन सैलरी बजट की मद में 2 हफ्ते कबल फंड जारी किए थे। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स जारी किए गए। स्कूल सरबराहान ने DPI सेकेंडरी से नोटिस लेते हुए फौरी फंड्स ट्रांसफर करवाने का मुतालिबा किया है। सोलर समेत 3 फेज मीटर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस नाफिज। 3 फेज मीटर्स कम से कम 1,687 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 6 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर 2,025 और 7 किलोवाट पर 2,362 चार्जेस आयद, जबकि 10 किलोवाट लोड पर 3,375 चार्जेस देना होंगे। सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन ज्यादा मुतासिर होंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के सार्फिन पर भी बोझ पड़ेगा। वफाक ने सोलर समेत तमाम 3 फेज मीटर्स के हामिल सार्फिन पर फिक्स चार्जेस का नफाज कर दिया। 5 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर कम से कम 1,687 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। 6 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर 2,025 जबकि 7 किलोवाट पर 2,362 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। 8 किलोवाट पर 2,700 रुपए, 9 किलोवाट पर 3,037 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। इसी तरह 10 किलोवाट लोड पर 3,375 रुपए, 11 किलोवाट पर 3,712 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। दूसरी जानिब 12 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर 4,050 रुपए, 13 किलोवाट पर 4,387 रुपए फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 14 किलोवाट लोड पर 4,325, 15 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर 5,062 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। मंजूर शुदा लोड 15 किलोवाट से जायद होने पर फिक्स चार्जेस में इजाफा हो जाएगा। फिक्स चार्जेस के नफाज से सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन से ज्यादा मुतासिर होंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस का बोझ पड़ेगा। नेपरा की मंजूरी से रवा माह की बिलिंग में फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्कुलर रूट से सरकारी इदारों की मुंतकली महंगी पड़ने लगी। दफातर की मुंतकली पर 25 अरब से ज्यादा के अखराजात का तखमीना। लेस्को तनसीबात की मुंतकली पर 19 अरब 60 करोड़ खर्च होंगे। सरकारी स्कूलों की मुंतकली पर 3 अरब 38 करोड़ के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। वासा दफातर डिस्पोजल स्टेशन मुंतकिल करने पर 2 अरब 45 करोड़ दरकार हैं।
पुलिस स्टेशन की मुंतकली पर 19 करोड़ खर्च होंगे। सर्कुलर रोड से सरकारी इदारों की मुंतकली महंगी पड़ने लगी। सरकारी दफातर की मुंतकली पर 25 अरब से जायद के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। लेस्को तनसीबात की मुंतकली पर 19 अरब 60 करोड़ खर्च होंगे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा अखराजात लेस्को तनसीबात की मुंतकली पर 19 अरब 60 करोड़ आएंगे। सरकारी स्कूल्स की मुंतकली पर 3 अरब 38 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह वासा के दफातर और डिस्पोजल स्टेशन को मुंतकिल करने के लिए 2 अरब 45 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। पुलिस स्टेशन की मुंतकली पर भी 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी इदारों की मुंतकली से मुतालिक तफसीली तखमीने और अखराजात की रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। मंसूबे की लागत और अफादियत पर मुख्तलिफ हलकों में बहस शुरू हो गई। आसमान को छूता तिजारती खसारा और मशरिक वस्ता में जंग के पाकिस्तान पर मौशी असरात। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, बिजनेस टाइकून्स डॉक्टर गौहर एजाज, एसएम तनवीर और दीगर की फेडरेशन चैम्बर में अहम मुलाकात। मईशत को दबाव से निकालने के लिए हिकमत अमली पर बातचीत की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब फेडरेशन चैम्बर पहुंच गयी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला की तरजीह पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर है। मौजूदा और नई इंडस्ट्री में इजाफे पर फोकस कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कमेटी तश्कील दी है। इंडस्ट्री के मसाइल बारे तफसीली ब्रीफिंग मिली है। टैरिफ और दीगर मसाइल के हल के लिए प्लान मुरतब किया जाएगा। पिछले 2 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कानून में भी तब्दीली हुई, तो हमें एक टास्क दिया गया है इस कमेटी को, जिसमें चेयरमैन प्लानिंग भी हैं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी हैं, कि किस तरह इन तमाम इंडस्ट्री के साथ बैठकर पूरे पंजाब में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट लेड और स्किल अलाइनमेंट, इसी तरह जो इनके एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के मसाइल हैं, टैरिफ्स के मसाइल हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, इनको कैसे इक्विप किया जाए कि ये अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री है और नेशनल इंडस्ट्री के साथ कम्पीट कर सकें। साबिक सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने कहा कि मीटिंग में इंडस्ट्री के मसाइल के बारे में बातचीत हुई। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी बिरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। हमने नए नए प्रोपोजल्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है जिस तरह से आज मीटिंग हुई है ये सारे मसले हल होंगे और आप पंजाब में देखिएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया दौर चलेगा। जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा हैं उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया उनमें उनको कामयाबी मिली है। फेडरेशन चैम्बर के कायदीन ने कहा कि हुकूमत और स्टेक होल्डर एक साथ चलने से ही माशी मसाइल का हल मुमकिन होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास 22,000 देहात के तालाबों की बहाली के लिए सर्वे का फैसला। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मिसाली गाँव प्रोग्राम का दायरा कार मरहलावार तमाम देहात तक वसी होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग ने शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी असदुल्ला ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की हिदायत पर 22,000 देहात के छप्परों की बहाली के लिए सर्वे का फैसला किया गया। वज़ीर बल्दियात ने कहा 40,000 छप्परों की सफाई की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भी सुनी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए फंड्स जारी। पहले मरले में फिल्म साज, हिदायतकार और तकसीमकारों को 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। कुल रकम 3 करोड़ मिलेगी। बाकी फंड्स 2 मरहलों में तकसीम किए जाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे जैन मतनी से। जी जैन बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भी सुनी गई बिल आखिर, और पहली दफा हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए जो 2 अरब रुपए का ऐलान किया था, उसमें से अब जो रकम है वो मरहलावार मिलना शुरू हो गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि गुलाम मोहिउद्दीन जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का चीनी अदाकार है, हिदायतकार मसूद भट्ट, डिस्ट्रीब्यूटर नदीम मांडवी वाला, राशिद ख्वाजा, हिदायतकार संगीता, हिदायतकार शहजाद रफीक, वासे चौधरी, वजाहत रऊफ, अदाकार यासर नवाज, मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर है सतीश आनंद, हिदायतकार सैयद नूर शान और अली जफर को जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का जो पहला मरहल में जो है वो चेक जो है वो दे दिए गए हैं। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन मदनी अपडेट करने के लिए। रमजानुल मुबारक में जहां इबादत का सिलसिला जारी है, वहीं खिदमत खल्क की खूबसूरत मिसालें भी सामने आ रही हैं। अल खिदमत फाउंडेशन का आसान अफ्तार प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत रजाकार अफ्तार पैकेट्स बनाकर शहर भर में कायम 24 पॉइंट्स पर राहगीरों और मुसाफिरों को फराहम करते हैं।
रमजान के बाबरकत महीने में अलखदमत फाउंडेशन का आसान इफ्तार प्रोग्राम जारी है। अलखदमत फाउंडेशन के रज़ाकार न सिर्फ इफ्तार बॉक्सेस तकसीम करते हैं बल्कि इन्हें खुद अपने हाथों से तैयार भी करते हैं। मुख्तलिफ मराकिज़ पर रज़ाकार खजूर, पानी की बोतल और दीगर अशिया खुरनोश पैक करके इफ्तार पैकेट्स बनाते हैं और फिर मुख्तलिफ इलाकों में कायम 24 पॉइंट्स पर पहुँचते हैं, जहाँ इफ्तार से कबल मसरूफ शाहराहों, बस स्टॉप्स और अहम चौराहों पर खड़े होकर राहगीरों और मुसाफिरों में इफ्तार पैकेट्स तकसीम किए जाते हैं ताकि कोई भी रोजादार बर वक्त इफ्तार से महरूम ना रहे। कोऑर्डिनेटर सनान अकबर का कहना है, आसान इफ्तार हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें रज़ाकार खुद इफ्तार पैकेट्स तैयार करते और फिर इन्हें राहगीरों, मुसाफिरों तक पहुंचाते हैं। हमारे 24 स्पॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें उस स्पॉट के जो नियरेस्ट यूनिवर्सिटी, स्कूल, इवन के सोसाइटी से बच्चे आते हैं और वो उधर वॉलंटियर करते हैं, वो उसका फंड रेज खुद करते हैं, वो उसकी पैकिंग खुद करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करते हैं और स्पॉट की सिलेक्शन भी खुद कर रहे होते हैं कि जिधर उनको ज़्यादा एक अच्छा लग रहा है कि मैं इस स्पॉट में, मैं हस्पतालों में भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, अफ्तारी कराना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो उधर करा रहे होते हैं। तो हमने इस पूरी की ऑनरशिप जो अपने वॉलंटियर्स को दी होती है। रज़ाकारों का कहना है, इस इक़दाम का मकसद उन अफराद की मदद करना है जो ट्रैफिक या काम की मसरूफियात के बाइस बर वक्त घर नहीं पहुँच पाते। वो लोग रोज़े के टाइम, अफ्तारी के टाइम पे अपने घर पे नहीं पहुंच पाते, तो उनको रास्ते में हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग अपना अफ्तारी जो है वो टाइम पे करें, रोज़े को अफ्तार करें। रोज़े में आप खुद जब इफ्तार करते हैं आपको सवाब मिलता है और ऐसे ही जब आप दूसरे किसी का रोज़ा कुशाई करवाते हैं तो ज़्यादा सवाब मिलता है। तो बस ये आसान इफ्तार का कॉन्सेप्ट भी इसी के तहत है। रमज़ान की बरकतों में खिदमत का ये सिलसिला राहगीरों और मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा कर रहा है। इफ्तार से कबल अलखदमत फाउंडेशन के रज़ाकार इफ्तार बॉक्सेस तैयार करते हैं और फिर इन्हें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर राहगीरों और मुसाफिरों में तकसीम करते हैं ताकि जो लोग सफ़र में हैं वो भी बर वक्त रोज़ा इफ्तार कर सकें। रमज़ान के महीने में ये यकीनन एक अच्छा और खुशाइंद इक़दाम है। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।